بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11th کلاس فزکس، چیپٹر نمبر ہے ہمارا 6 فلوئڈ ڈائنامکس، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلوئڈ فرکشن اینڈ اسٹوکس لا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ فلوئڈ فرکشن کیا ہوتی ہے۔ بچوں، جب کوئی ایک سالڈ آبجیکٹ کسی فلوئڈ میں سے فلو کرتا ہوا جاتا ہے تو اس کو کچھ ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے، کچھ اپوزیشن کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ریزسٹنس کو ہم فلوئڈ کی فرکشن کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یاد رہے کہ فرکشن تب آتی ہے جب دو لیئر جو ہوتی ہیں فلوئڈ کی، جسے ہم ایڈجسٹنٹ لیئر کہیں گے، ان کے درمیان ویلوسٹیز کا ڈفرنس آ جائے۔ آپ نے جب سمپلی فرکشن کو سیکھا تھا تو کیا سیکھا تھا کہ یہ ایک ارتھ کی سرفیس ہے، اس کے اوپر یہ ایک آبجیکٹ ہے، یہ ایسے سلائڈ کرتا ہوا جا رہا ہے، تو یہاں اس کے درمیان فرکشن ہوگی۔ اگر ذرا غور کریں تو اس کی ویلوسٹی کیا ہے؟ 0۔ اس کی ویلوسٹی کچھ نہ کچھ ہے، وہ موو کر رہا ہے، تو دونوں میں ویلوسٹیز کا ڈفرنس ہے، اسی لیے یہاں پر فرکشن ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ویلوسٹی سے چل جائیں ایسے، تو کیا پھر ان میں دونوں میں فرکشن ہوگی؟ نو۔ یہ دیکھیں، دونوں سرفیس ایک ہی ویلوسٹی سے اگر چلنا شروع کر دیں تو یہاں کچھ بھی فرکشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو فرکشن تب آتی ہے جب دو لیئرز کے درمیان ویلوسٹیز ڈفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اب ایک آبجیکٹ کو، ایک سالڈ آبجیکٹ کو آپ جب لیکوڈ میں امرس کرتے ہیں یا اس کو اس میں سے پاس کراتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو لیئرز ہوتی ہیں فلوئڈز کی، ان کے درمیان ویلوسٹیز کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ ایک لیئر جو اس آبجیکٹ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کی ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے، اس سے نیکسٹ لیئر کی ویلوسٹی کم ہوتی ہے، تو ان کے درمیان ہمارے پاس ایک ریزسٹیو فورس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فرکشن آ جاتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو فورس آف فرکشن ایک آبجیکٹ نے فیس کی، یہ ڈیپینڈ کس چیز کے اوپر کرتی ہے؟ لیئرز کے درمیان جو ویلوسٹی کا ڈفرنس آیا، ایک تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جتنا زیادہ ڈفرنس ہوگا ویلوسٹیز کا اتنا زیادہ فرکشن آئے گی۔ سیکنڈلی، آبجیکٹ جس فلوئڈ میں سے پاس کرتا ہوا جا رہا ہے اس کی وسکوسٹی کے اوپر، اگر اس کی وسکوسٹی ہائی ہوگی تو آبجیکٹ زیادہ ریزسٹنس فیل کرے گا، اگر اس کی وسکوسٹی کم ہوگی تو آبجیکٹ کم ریزسٹنس فیل کرے گا۔ آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک گلاس واٹر لے لیں اور ایک گلاس ہنی، چھوٹا سا ہلکا سا سٹون لے لیں، بالکل لائٹ ویٹ، اس کو گلاس میں پھینکیں دونوں گلاسز کے اندر، اور جو واٹر ہے اس میں سے وہ آسانی سے پاس کر کے نیچے چلا جائے گا، اس کے اوپر جو رزسٹیو فورس ایکٹ ہوئی وہ تھوڑی کم ایکٹ ہوئی۔ لیکن اگر ہنی والے گلاس میں اس کو پھینکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہنی میں وہ پاس ہی نہ کر سکے، اس کی اتنی زیادہ اپوزنگ فورس ہو، اتنی زیادہ وہاں پہ فرکشن ہو کہ اس میں سے پاس بھی نہ کر سکے، وہ اس کی سرفیس کے اوپر پڑا رہے، یا اگر پاس کر جائے تو بڑے آرام سے جائے، بالکل سلولی نیچے جائے، کیونکہ ریزسٹنس ہے سامنے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ فلوئڈ کی وسکوسٹی جتنی ہائی ہوگی وہ اتنی زیادہ اپوزنگ فورس لگائے گا، اتنی زیادہ ریزسٹیو فورس لگائے گا، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم فلوئڈ کی فرکشن کہتے ہیں۔ اوکے، اب ایک اور ٹرم یہاں پہ استعمال ہوتی ہے ڈریگ فورس، اس کے بعد ہم اسٹوکس لا کی طرف آئیں گے۔ ڈریگ فورس کیا ہوتی ہے؟ یہ جس فرکشنل فورس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کا نام ہم نے ڈریگ فورس رکھا ہوا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے ڈیفینیشن، when an object moves through a fluid، جب کوئی آبجیکٹ کسی فلوئڈ سے موو کرتا ہے، the retarding force experienced by the object moving through it is called drag force۔ تو وہ آبجیکٹ جو ہم نے کسی فلوئڈ سے پاس کرایا، پاس کراتے ہوئے اس کے اوپر جو ریٹارڈنگ فورس لگی، ریٹارڈنگ فورس بیسیکلی کیا ہے؟ ریزسٹنگ فورس ہے، جو اس کی ویلوسٹی کو کم کر رہی ہے، جو اس کو سلو ڈاؤن کر رہی ہے، اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا جی؟ ڈریگ فورس رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ چیز بھی کلیئر ہو جانی چاہیے ڈریگ فورس کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک اپوزنگ فورس، جب کوئی بھی آبجیکٹ کسی فلوئڈ سے موو کرتا ہوا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ایک اپوزنگ فورس لگ رہی ہے، جو ریزسٹیو فورس ایکٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر، اس کا نام ہم نے رکھ دیا ڈریگ فورس۔ اوکے، کن کن چیزوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آبجیکٹ کے سائز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ چھوٹا آبجیکٹ ہے نا، اگر وہ فلوئڈ میں سے موو کرتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے اوپر کم ڈریگ فورس ایکٹ ہوگی، ایک بڑا آبجیکٹ ہے اس کے اوپر زیادہ ڈریگ فورس ایکٹ ہوگی۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، چھوٹا سا ایک پیس لے لے تھرموپول کا، ٹھیک ہے؟ اور ایک بڑا پیس لے لے، اب ایک چھوٹا آبجیکٹ ایک بڑا آبجیکٹ آ گیا، موونگ کار ہے، اس کی جو ونڈو ہے اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو باہر رکھیں اس تھرموپول شیٹ کو، اور فیل کریں کہ اس کے اوپر کتنی اس کے اوپر فرکشنل فورس یا ڈریگ فورس ایکٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو اندر رکھیں اور ایک بڑے آبجیکٹ کو باہر نکالیں، کار کی ویلوسٹی اتنی ہے، آپ فیل کریں گے
कि बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लग रही है। तो पहले नंबर पे याद रखें, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये तमाम चीज़ें हमने स्टोक्स लॉ के अंदर डिस्कस करनी है, इसलिए इसको अभी से सीख लें। ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर कम ड्रैग फोर्स एक्ट होगी, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट होगी। इसीलिए छोटी थर्माकोल की शीट को अगर आपने कार में से बाहर निकाला उसके ऊपर कम फोर्स आएगी, और अगर बड़ी शीट को आपने बाहर निकाला तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स, अपोजिंग फोर्स आप फील करेंगे। ओके, दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर। अब देखिए ज़रा, एक ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आप इस तरह से इसको लेके जा रहे हैं, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है बिल्कुल सीधा, तो आप फील करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो एक ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगती है, ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट होती है। इसकी बजाय आप एक कोनिकल ऑब्जेक्ट ले लें, ऐसे इस तरह का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर आप एयर में मूव कराएंगे तो आपको फील होगा कि इसके ऊपर बहुत कम ड्रैग फोर्स एक्ट होगी। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये जो फेस है अगर आप इस तरह एयर में लेके जाएंगे इसको, इसके ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट होगी। इसी की एक कोन बना लें इस तरह से। अब उस कोन को आप इस तरह लेके जाएं, ऐसे कोन बनी हुई है, आप इस तरह मूव करा रहे हैं उसको एयर में से, तो आप फील करेंगे कि आप इसके ऊपर बहुत कम ड्रैग फोर्स एक्ट हो रही है। तो ये शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, अब हम वेलोसिटी को देख लेते हैं। दोबारा उसी एक्सपेरिमेंट पे आए, छोटा सा थर्मोपिल का शीट ले लें, उसको आप गाड़ी में से बाहर निकालें, आपने इसको ऐसे ग्रिप करके रखा हुआ है, पहले गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। आप फील करेंगे कि आप इजीली उसको ग्रिप किया हुआ, इसके ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो स्पीड के बढ़ाने के साथ साथ आप क्लियरली ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर आप ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या सीखा हमने? ये एक ऑब्जेक्ट था जो फ्लूइड में से पास कर रहा था, क्योंकि गैसेस भी फ्लूइड ही होती हैं, हमारे इर्द गिर्द एयर है वो फ्लूइड है। अब पहले हल्की वेलोसिटी थी, थोड़ी वेलोसिटी थी, तो इसके ऊपर कम ड्रैग फोर्स एक्ट हो रही थी। जैसे ही गाड़ी ने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया और साथ साथ इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो गई, और उसकी वजह से हमें उसको संभालना मुश्किल हो गया। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम करोगे तो ड्रैग फोर्स भी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन है ड्रैग फोर्स का? एक फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी हाई होती है, हाई विस्कोसिटी वाला जो फ्लूइड है उसमें से जब कोई ऑब्जेक्ट पास करेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट होगी, और अगर एक लो विस्कोसिटी वाला कोई फ्लूइड है उसमें से ऑब्जेक्ट पास करेगा तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कम एक्ट होती है। ठीक है, इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक बॉल है ना, बॉल की एग्जांपल ले लेते हैं, बॉल को आप ऐसे उछालते हैं, इधर फेंकते हैं, तो वो इस वक्त एयर में से मूव करती हुई जा रही है। एयर भी एक फ्लूइड है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, और उसी बॉल को अगर आप वाटर में से ऐसे फेंके, उसमें से पास कराएं, तो आप फील करेंगे कि अच्छा खासा डिफरेंस आपको नजर आएगा कि बॉल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एयर से वो आसानी से मूव कर रही थी, लेकिन जब लिक्विड में इसको स्पीड के साथ फेंका बड़े से टैंक के अंदर तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? वाटर की विस्कोसिटी हाई है एज कंपेयर टू द एयर। एयर भी फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है। एयर की विस्कोसिटी कम है, वाटर की विस्कोसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब बॉल एयर में से आसानी से मूव कर जाएगी, उसके ऊपर कम अपोजिंग फोर्स आएगी, लेकिन उसी बॉल को जब आप वाटर में फेंकेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपोजिंग फोर्स एक्ट होती है, यानी ड्रैग फोर्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ट होती है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर कोई लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी हाई है तो वो ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और अगर विस्कोसिटी लो है तो ड्रैग फोर्स कम होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ओरिएंटेशन है। एक ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है। देखें, आपके पास वो कार्डबोर्ड है ना, उस कार्डबोर्ड को आपने पहले ऐसे रखा है और इस तरह से लेके जा रहे हैं ऐसे, तो आप फील करेंगे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगी। अगर उसकी बजाय आप उसकी ओरिएंटेशन, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दें, उसको यूं रखें ऐसे, और अब अगर आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो आपके लिए इसको मूव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होगा कि एक दो फेस होते हैं बैट के, एक ये फेस है और एक ये वाला जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होता है। अगर आप बैट को यूं लेकर जाएंगे ऐसे, या अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो यूं लेके जाएं ऐसे लेके जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी। इसकी बजाय अगर आप बैट को यूं रखें और इस तरह से शॉट लगाएं तो आपका बैट बहुत आसानी से जाएगा। क्यों? इस तरह मूव करते हुए ये जो ओरिएंटेशन है, इस सूरत हाल में इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो ज़्यादा एक्ट होती है।
आपको शॉट लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने इसको यूं रखा हुआ है, ऐसे शॉट लगाना मुश्किल तो होता है बॉल को पिक करना, लेकिन ऐसे बैट को लेके आना काफ़ी आसान होता है। बैट बड़ी आसानी से यूं आएगा ऐसे, इसके ऊपर इस सूरत में ड्रैग फोर्स कम होती है। तो एक ये ओरिएंटेशन है और दूसरी ये है। अब ये जो ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट है ना, वो जिस तरह की होगी उसके हवाले से भी इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करती है। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट आपने सीख लिए। अब इसी को हमने अप्लाई करना है यहाँ स्टोक्स लॉ के अंदर। स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या, वो क्या कहता है जरा वो देख लीजिए। द विस्कस फोर्स इज बेसिकली ड्रैग फोर्स ही है, वो ड्रैग फोर्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स या विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स एक्ट होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस r एंड वेलोसिटी v। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो विस्कस फोर्स या जो ड्रैग फोर्स एक्ट होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। नंबर 1 उसकी वेलोसिटी पे, नंबर 2 फ्लूइड की जो हमारे पास विस्कोसिटी है उस पे, और नंबर 3 ऑब्जेक्ट के साइज यानी जो उसका रेडियस कंट्रोल कर रहे हैं ना साइज को, तो ऑब्जेक्ट की रेडियस के ऊपर। अब हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है। तो ड्रैग फोर्स जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है नंबर 1 किसके, नंबर 1 हमारे पास ये विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी इसकी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, जितनी फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी उतनी कम ड्रैग फोर्स होगी। ठीक है, इसको हम 1 कहते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सीखा ड्रैग फोर्स के बारे में। ठीक है, फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। ओके, कोफिशिएंट विस्कोसिटी कहते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सेकेंडली हमने ये सीखा था कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो वेलोसिटी के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स। अभी आपको मैंने सिखाया कि एक ऑब्जेक्ट को आप विंडो से बाहर रखें, कार की विंडो से बाहर, जब कार की वेलोसिटी कम होगी उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, वो कम होगी। जैसे ही आप कार की वेलोसिटी बढ़ाओगे साथ साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट के साइज का भी हमने यहां पढ़ा था, देख सकते हैं आपके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो यहां पर जो स्टोक ने कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल है। अब इसके स्फीयर के साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है, रेडियस। अगर रेडियस छोटा होगा तो साइज छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा। इसीलिए यूं समझ लीजिए कि रेडियस जो है वो साइज की जगह ले रहा है यहां पर। ठीक है, जो ड्रैग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब साइज को यहां कंट्रोल कर रहा है रेडियस, तो हम यहां पर रेडियस लिख देते हैं। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हमने देख लिया ये तीनों चीजों के ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड करती है। इन तीनों को आप कंबाइन कर लें। ठीक है, एफ डी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर और वी, कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज इक्वेशन। यहाँ लिख सकते हैं आप कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। अब यहां पर जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है हम उसको खत्म करते हैं और उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट। इसकी जगह कांस्टेंट जो है वो ए यूज करेंगे हम। ए कांस्टेंट है ईटा आर वी। ठीक है, अब ये जो ए है ना, ए, इसकी वैल्यू होती है जी हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 6 पाई, वो वैल्यू यहां पुट कर दें। ड्रैग फोर्स एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये आ गया जी हमारे पास रिलेशन फॉर द स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ ने यही तो बताया था हमें कि जो विस्कस फोर्स है या जो ड्रैग फोर्स है जो किसी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, उस स्फीयर के रेडियस के ऊपर, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के ऊपर। बेसिकली ईटा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, विस्कोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जिसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।